नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज, लूसेंट का समान ज्ञान पढ़ा रहा हूँ, जो कि ये आपका ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ है, ठीक है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आपका पॉलिटी का जो भी एमसीक्यू होगा उसको हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 17 को प्रैक्टिस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 17 देखिए आपके सामने आ गया है। तो चैप्टर नंबर 17 का नाम है द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो उसको, इसका जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर नंबर 17 का पहला पार्ट है विधान परिषद, द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन पहला है, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द legislative council of a state cannot be exceed the total number of members in the legislative council of a state cannot exceed option A 1/4 of the total number of members in the legislative assembly, option B 1/3 of the total number of members in the legislative assembly, option C 1/6 of the total number of members in the legislative assembly, option D no such limit has been fixed। तो वन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है बी, 1/3 of the total number of members in the legislative assembly। The total number of members in the legislative council of a state cannot exceed one third of the total number of members in the legislative assembly। Question number 2 है, the total number of members of the legislative council can in no case be less than। तो total number of members of the legislative council can in no case be less than option A 40, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी नो मिनिमम स्ट्रेंथ हैज बीन फिक्स्ड। तो 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 40 मिनिमम आपका रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु अमंग द फॉलोइंग रिकमेंडेड टू पार्लियामेंट फॉर द abolition ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। तो हु अमंग द फॉलोइंग रिकमेंडेड टू द पार्लियामेंट फॉर द abolition ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इन स्टेट। ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी द गवर्नर ऑफ द कॉन्सर्न स्टेट, ऑप्शन सी the legislative council of the concerned state, option D the legislative assembly of the concerned state। तो who among the following recommended to parliament for the abolition of the legislative council in state। तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द concerned state। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज द अपर चैम्बर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया। तो विच इज द अपर चैम्बर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया। ऑप्शन ए लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑप्शन बी लेजिस्लेटिव, यहाँ पर असेंबली होना चाहिए, यहाँ पर आपका असेंबली होना चाहिए, ठीक है, असेंबली। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन सी गवर्नर ऑफिस, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर है 4 का ऑप्शन नंबर है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी क्रिएटेड और अबोलिश्ड। तो इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया legislative council can be created or abolished। option A by the parliament, option B by the president on the recommendation of the governor of the state, option C by the governor on the recommendation of the council of ministers, option D by the parliament as per resolution passed by the legislative assembly of the state। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया legislative council can be created or abolished by the parliament as per resolution passed by the legislative assembly of the state। Question number 6 है, which one of the following is the period for the legislative council to detain the ordinary bill। तो which one of the following is the period for the legislative council to detain the ordinary bill। ऑप्शन ए 14 days, ऑप्शन बी 3 months, ऑप्शन सी 4 month, ऑप्शन डी 6 month। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन में बी 3 month। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पीरियड फॉर द legislative council to detain the ordinary bill 3 months। क्वेश्चन नंबर 7 है, procedure for creation of legislative council in a state has been described in which article of the constitution। तो procedure for creation of legislative council in a state has been described in which article of the constitution। option A article 69, option B article 169, option C article 269, option D article 369। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन में बी आर्टिकल 169। क्वेश्चन नंबर 8 है, which one of the following state does not have a bicameral legislature। विधान परिषद पर विधानसभा। तो which one of the following state does not have a bicameral legislature, that is विधानसभा, विधान परिषद एंड विधानसभा। ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी बिहार एमपी, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
BMP। तो नेक्स्ट आपका आपका इसका पार्ट नंबर सेकंड है, तो चैप्टर नंबर 17 का पार्ट नंबर सेकंड पढ़ेंगे, जो कि आपका होगा विधानसभा, जिसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है चैप्टर नंबर 17 का सेकंड पार्ट, पहला क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट इन इंडिया कैन हैव इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट इन इंडिया कैन हैव इज ऑप्शन इज 400, ऑप्शन बी 450, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 600। तो वन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 500। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूनियन टेरिटरी हैज ए लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 30 मेंबर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूनियन टेरिटरी हैज ए लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 30 मेंबर। ऑप्शन ए पौंडीचेरी, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पौंडीचेरी। So which of the following state union territory has legislative assembly consisting of only 30 members? Option A Pondicherry. Question number 3 है, consider the following statement regarding Indian polity. तो consider the following statement regarding Indian polity. आपका statement 1 है, in India a state cannot have more than 500 members in its legislative assembly. दूसरा statement है, to be a member of a state legislative assembly a citizen must not be less than 25 years of age. और which of these statement are correct? Option A 1 only, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉट 2। तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2। तो इन इंडिया ए स्टेट कैन नॉट हैव मोर देन 500 मेंबर्स इन इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। टू बी ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ए सिटीजन मस्ट नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विथ रेफरेंस टू द स्टेट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो विथ रेफरेंस टू द स्टेट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो एक दो और आपका दो स्टेटमेंट दिया गया। तो पहला स्टेटमेंट है, 6 मंथ शैल नॉट इंटरवेन बिटवीन द लास्ट सिटिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द फर्स्ट सिटिंग ऑफ नेक्स्ट सेशन। और आपका दूसरा स्टेटमेंट है, आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन टू द स्टेट असेंबली द गवर्नर हैज़ टू एड्रेस द स्टेट असेंबली ऑन द वेरी फर्स्ट सिटिंग एंड सो ऑल्सो द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही होगा। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉट 2। तो आपका जो है 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो विथ रेफरेंस टू स्टेट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। तो 6 months शैल नॉट इंटरवेन बिटवीन द लास्ट सिटिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द नेक्स्ट सेशन। तो ये आपका सही है। आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन टू द स्टेट असेंबली द गवर्नर हैज़ टू एड्रेस द स्टेट असेंबली ऑन द वेरी फर्स्ट सिटिंग एंड सो ऑल्सो द फर्स्ट सेशन ऑफ द एवरी ईयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, वो एमंग द फॉलोइंग रिकमेंड्स टू द पार्लियामेंट फॉर द एबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। तो हु एमंग द फॉलोइंग रिकमेंड्स टू द पार्लियामेंट फॉर द एबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी द गवर्नर ऑफ द कॉन्सर्न्ड स्टेट, ऑप्शन सी द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द कॉन्सर्न्ड स्टेट, ऑप्शन डी द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कॉन्सर्न्ड स्टेट। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी the legislative assembly of the concerned state. So who among the following recommend to the parliament for the abolition of the legislative council in a state? The legislative assembly of the concerned state. 6 है आपका, which of the following state can nominate 2 women members of the legislative assembly? So which of the following state can nominate 2 women members of the legislative assembly? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो आपका 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपका दिया हुआ दो स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट, पहला स्टेटमेंट है, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 500 मेंबर्स chosen by direct election from territorial constituencies in the state। दूसरा स्टेटमेंट है, if a person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the legislative assembly of a state if he is less than 25 years of age। So which of the statement give a correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 nor 2। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2। ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट shall consist of not more than 500 members
chosen by direct election from territorial constituencies in the state. और दूसरा आपका है a person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the legislative assembly of a state if he is less than 25 years of age। दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका जो है नेक्स्ट आपका है थर्ड पार्ट नंबर, उसका हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, जो कि आपका ऑफिसर स्पीकर विधानसभा चेयरमैन विधान परिषद। तो ऑफिसर स्पीकर विधानसभा जो कि आपका चेयरमैन और विधान परिषद, तो दो के बारे में पढ़ाना है यहाँ पर। तो एक ही क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, इसको इसी में कंप्लीट करेंगे। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ a state in India is dissolved in mid-term, the speaker continues in office till the process of formation of next legislative assembly. So if the legislative assembly of a state in India is dissolved in mid-term, the speaker continues in office till the process of formation of next legislative assembly. और दूसरा आपका when the speaker of a legislative assembly resign, he addresses his letter to the deputy chairman of the assembly. So when the speaker of a legislative assembly resign, he addresses his letter to the deputy chairman of the assembly. So which of the statement given are correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 nor 2। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 का 1 का सी। ठीक है, तो बोथ 1 and 2 है करेक्ट। ठीक है, तो इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट इन इंडिया इज डिसॉल्व इन मिड-टर्म, द स्पीकर कंटिन्यूस इन ऑफिस टिल द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये सही है। और व्हेन द स्पीकर ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली रिजाइन, ही एड्रेस हिज लेटर टू द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द असेंबली, ये भी सही है। दोनों आपका स्टेटमेंट सही है। इस प्रकार हमारा जो है चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम चैप्टर नंबर 18 पढ़ेंगे। ठीक है।